डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास 7th सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और हमारा आज का टॉपिक है टेक्स्ट से ए मैड टी पार्टी। एक कहानी है जो हम आज पढ़ेंगे, तो आप गौर से सुनिए। शुरू करते हैं हम। Elias, a young girl, wanders about in Wonderland where animals talk and behave like human beings. Three animals are having a party. Elias is not invited, but she joins them. The behavior of the animals and what they say to Elias is very unusual. तो क्या है, एक कहानी है जो हम आज पढ़ेंगे। एलाइस जो एक छोटी सी लड़की है, वंडरलैंड में इधर उधर घूमती है, जहाँ जानवर इंसानों की तरह बातें करते हैं और पेश आते हैं। तीन जानवर पार्टी कर रहे होते हैं। एलाइस को दावत नहीं दी जाती है, लेकिन वो उनमें जाकर शामिल हो जाती है। इन जानवरों का बर्ताव और जो बातें वो उससे कहते हैं बहुत गैर मामूली होती हैं। तो आपको समझ आया होगा, ये जो पार्टी कर रहे हैं ये मैड टी पार्टी, यानी कि जो पागलों की चाय की दावत है या दीवानों की टी पार्टी है, ये कहाँ हो रही है? वंडरलैंड में हो रही है। वंडरलैंड उस जगह को कहते हैं जिसको परियों का मुल्क कहते हैं, या जादू या तस्वराती सरजमी। उस जगह ये पार्टी हो रही है, वहाँ पर ये जानवर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आगे सुनिए। A table was set out under a tree in front of a house, and Elias saw the marcher and the hatter having tea at it. A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion and talking over its head. Very comfortable for the dormouse, thought Elias. Perhaps it's sleep. I suppose it doesn't mind. The table was a large one, but the three were all covered together at one corner of it. No room, no room, they cried out when they saw Elias coming. There is plenty of room, said Elias angrily, and she sat down in a large armchair at one end of the table. Have some wine? The marcher said in an encouraging tone. Elias looked around the table. There was nothing to be seen on it except tea. I don't see any wine, she remarked. There isn't any, said the marcher. Then it wasn't very polite of you to offer it, and said Elias angrily. I wasn't very polite. I wasn't very polite of you to sit down without being invited, said the marcher. तो आप इसका माने समझिए। जो हमने ये कहानी पढ़ी, A table was set out under a tree in front of a house. एक घर के सामने की तरफ एक मेज सजी हुई थी। And Elias saw the march here and the hatter having tea at it. और एलाइस ने मार्शियर और हेटर को इस पर बैठे चाय पीते हुए देखा। A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion and talking over its head. Very uncomfortable for the dormouse, thought Elias. Perhaps it is sleep. I suppose it doesn't mind.
एक डॉर्माउस उनके बीच बैठा हुआ था, गहरी नींद सोया हुआ, और दूसरे दोनों इसे एक गद्दी यानी कि तकिए के रूप में इस्तेमाल किए हुए थे और इसके सर के ऊपर की तरफ से बातें कर रहे थे। डॉर्माउस बहुत बेआरामी महसूस कर रहा होगा। एलाइस ने सोचा, शायद वो सोया हुआ है। मेरे ख्याल में उसे बुरा नहीं लग रहा होगा। The table was large one, but the three were all crowded together at one corner of it. मेज काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उस सभी तीनों इसके एक कोने पर इकट्ठे सुकड़े बैठे थे। No room, no room, they cried out when they saw Elias coming. कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, वो चलाकर बोले जब उन्होंने एलाइस को आते हुए देखा। There is plenty of room, said Elias angrily, and she sat down in a large armchair at one end of the table. हाँ, वहाँ काफ़ी जगह है, एलाइस ने गुस्से के साथ कहा, और वो मेज़ के सिरे पर पड़ी हुई एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठ गई। बड़ी आरामदेह कुर्सी पर बैठ गई। Have some wine, the march here said in a encouraging tone. कुछ शराब लो, मार्च हियर ने हौसला अफजाई वाले अंदाज में कहा। Elias looked all round the table. There was nothing to be seen on it except tea. एलाइस ने मेज के चारों तरफ देखा, इसके ऊपर चाय के अलावा और कुछ नहीं था। I don't see any wine, she remarked. मुझे यहाँ कोई शराब दिखाई नहीं दे रही है, उसने कहा। There isn't any, said the marchier. उसने कह दिया, वहाँ कोई है ही नहीं, मार्शियर ने कहा। Then it wasn't very polite of you to offer it, said Elias angrily. तो फिर उसकी पेशकश करना कोई बड़ी हलीमी वाली बात नहीं थी, एलाइस ने गुस्से के साथ कहा। It wasn't very polite of you to sit down without begging. It was very polite of you to sit down without being invited, said the marchier. तुम्हारे लिए भी बिना बुलाए यहाँ आकर बैठना कोई ज़्यादा हलीमी वाली बात नहीं थी, मार्शियर ने कह दिया। तो हमने आज यहाँ तक पढ़ा पेज नंबर 20 और 21 का पहला पैराग्राफ। कल इससे आगे पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ जो नए अल्फाज हैं वो सुन लीजिए और उनका आपसे मायने कहूँगा। कुशन, इसमें कुशन आया। कुशन के माने हैं, ऐसे हम तकिए को कुशन कहते हैं, गद्दे को, गद्दा जो होता है पीछे रखने का तकिया, उसे कुशन कहते हैं। कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल और कंफर्टेबल। कंफर्टेबल होता है आरामदेह और अनकंफर्टेबल होता है जो बेआरामी हो। क्राउडेड, सुकड़े हुए। रूम, जगह, कमरा। तो इस तरह से हमने ये आज का सबक ख़त्म किया। तो आप इसको अपनी ज़बान से भी पढ़िए, घर में पढ़िए। यहाँ पर कोई मुश्किल हो तो कह दीजिए। ओके।